جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین، میں انصار عزیز ندوی اس وقت کے ایوننگ پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ تصویریں، کچھ وائرل ویڈیوز دکھانے جا رہا ہوں۔ 10 اگست ہے اور آج سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے لیے سیورس معاہدہ جو ہوا 1920 میں، وہ تاریخ ہے۔ اس کی کچھ تصویریں ہیں، وہ دکھاتا ہوں۔ اس کے علاوہ کاؤ کے نام پر ایک اور ویڈیو لنچنگ کی کوشش کی آئی ہے جو وائرل ہو رہی ہے۔ انڈونیشیا میں کس طرح آتش فشاں پہاڑ پھوٹتا ہے تو اس کا دھواں نکلتا ہوا ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے تفصیلاً رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ تائیوان کی حدود میں داخل ہونے والے چینی طیاروں پر میزائل فائر کی خبریں آ رہی ہیں۔ پاکستان میں ایک مرتبہ پھر دھماکہ ہوا ہے، وہ بھی خبر آئی ہے۔ الجزیرہ کے صحافی حسین کی قید کی مدت میں توسیع ہوئی۔ مصر میں پیس پارٹی کے صدر ڈاکٹر ایوب پر یوگی حکومت نے NSA لگا دیا ہے۔ اور بھی کچھ اہم ترین خبریں ہیں۔ بہار کے نجی مدارس کے ساتھ ساتھ ہندوستان بھر کے مدارس اس وقت مالی بحران کے شکار ہوئے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے اور بھی کچھ تفصیلات رکھیں گے۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، سبسکرائب کر لیں، ہمارے ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں اور ادارے کی مدد ضرور کریں اور اس کو مضبوط کریں۔ آئیے ناظرین، سب سے پہلے ہم کچھ ویڈیوز دیکھتے ہوئے آتے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ 2 تصویریں آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ تصویر آپ جو دیکھ رہے ہیں 1920 کی، جو کہ معاہدہ ہوا تھا سیورس کا، اس معاہدے کی یہ تاریخی تصویر ہے جس میں سگنیچر کیے جا رہے ہیں۔ آج 20 اگست ہے۔ 1920 میں سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے لیے معاہدہ ہوا تھا اور ساری اسلام دشمن طاقتیں اس سلطنت کو ختم کرنے کے لیے، جس میں خود مسلمانوں کے بھی بہت زیادہ منافقین پیدا ہو گئے تھے، وہ جو ہے گرائی ہوئی تاریخ ہے۔ چونکہ 10 اگست ہے اور 10 اگست کو میں بار بار آپ کو یاد دلاؤں گا کہ سیورس کی وجہ سے، اس معاہدے کی وجہ سے کس طرح کئی سالوں تک چلنے والی، صدیوں تک چلنے والی سلطنت عثمانیہ کو گرا دیا گیا تھا۔ اب 2023 میں معاہدہ بھی ختم ہونے کو آ رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ترکی کون سی شکل اختیار کرتا ہے اس معاہدے کے ختم ہونے کے بعد، اس لیے کہ 100 سال کا یہ معاہدہ ختم ہونے کے بہت ہی قریب ہو چکا ہے۔ ترکی کی آزادی کی جنگ اس وقت شروع ہو چکی تھی جب اس معاہدے کو بنایا گیا تھا۔ دشمنان اسلام نے مل کر کے ترکی کی خود مختاری کو چھین لیا گیا تھا۔ وہ تاریخ جو تھی وہ 10 اگست تھی اور اس تاریخ کو آپ بھولنا نہیں چاہیے بحیثیت مسلمان، کہ کس طرح سلطنت عثمانیہ کے گدی پر پیٹھ پر چھڑا گھونپا گیا تھا، کچھ اپنوں کی جانب سے اور مسلمانوں نے دشمن کی جانب سے پوری طرح سے سازشیں رچ کر کے کئی سال، 7 سال تک منصوبہ بنا کر کے اس کی جو ہے خلا قما کر دیا گیا تھا۔ ناظرین آئیے میں ویڈیو دکھاتا ہوں انڈونیشیا کی جو آ رہی ہے، جب آتش فشاں پہاڑ پھوٹ پڑتے ہیں، جب اس سے آگ نکلنا شروع ہو جاتی ہے تو کس طرح دھواں نکلتا ہے اور کس طرح کی صورتحال بنتی ہے، آپ اس ویڈیو سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے جو اس وقت دیکھتے ہیں کہ آسمان میں دھویں کے جو آثار ہیں جو نظر آ رہے ہیں، سے آتش فشاں پہاڑ پھوٹ پڑنے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہیں جو ویڈیو اس وقت وائرل ہو رہی ہے۔ بیک ناظرین آئیے ایک اور ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اور وہ ہے ہندوتوا گنڈوں کی۔ اس وقت مسلمان کسانوں کے لیے بھی مویشیوں کو اپنے ساتھ لے کے چلنا، گایوں کو پالنا، یہ بڑا دشوار کن ہو چکا ہے۔ ہندوتوا گنڈے راستے پر بستیوں میں، دیہاتوں میں گھوم رہے ہیں۔ جب ان کو لگتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں اور وہ کسان کھیتی باڑی کرتے ہیں، تب بھی ان کے جانوروں کو، جو بڑی مشکل ہے، غریب لوگ ان کو روک کر کے ان کے جانوروں کو ان کے ہاتھ سے چھین کر کے بھگانا، ان کو ہراساں کرنا، ان کو مارنا، یہ ساری چیزیں اس وقت ہندوتوا کے گنڈے کر رہے ہیں۔ جب روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو دیکھیں ان کو کس طرح گالیاں دے کر کے بھگانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہندوتوا گنڈوں کی جانب سے۔
जबकि ये लोग किसान हैं, मवेशियों को पालते हैं, दाढ़ियों को पकड़ के नोचते हैं लोग। देखिए देखिए क्या सब हो रहा है। ये हिंदुस्तान के एक इलाके से आई हुई वीडियो है जो इस वक्त वायरल हो रही है। उनके हाथों से जो है इस जानवरों को, इन मवेशियों को जो है निकाल करके फेंका जा रहा है। ये गरीब मुसलमान जो है किसान लोग जो है परेशान हो रहे हैं इन हिंदुत्व गुंडों की वजह से। चलो हमने की लेकिन वहां जो तेज बनता है शुरू करी करी आज पूछा ना हो जाता है लोग हो जो बेचना हो तो अरे जात में बेचना है अब बादशाह के जात पात से मतलब नहीं गया किन्हीं का गाली आना ए गाय छोड़ो मार तो बहुत ए तू घर कहां है घर कहां है तू घर कहां घर कहां तू बादशाह छोड़ पहले भाई छोड़ बादशाह छोड़ हटा बात ए हल आई बकरी को भागी भागी देख लियो का दे रे गाय ना खिला भागे तो भागे तो क्या भाई यार कहां बोला ए मारशो देखो मियां मारशो ई गहरी में हंस गई दाढ़ी छिलवा कहां के ना मारशो ई बादशाह किन। आइए नाजरीन, मदारिस के माली बहरान की बात करते हैं। जी हाँ, मुख्तलिफ इलाक़ों से शिकायतें हमें मौसूल हो रही हैं कि क्या सब सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है। मदरसा से वाबस्ता लोग किस तरह से जो है वो असातिज़ा कहें उलमा इकराम इस वक्त बड़ी परेशानियों की हालत में हैं। लॉकडाउन और कोरोना के सबब बिहार ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अक्सर इलाक़ों के मदरसों की माली हालत बेहद ख़राब हो चुकी है। रमज़ान के महीने में भी मदरसों को माली ताउन नहीं मिल सका और मौजूदा वक्त में भी लोगों की जानिब से मदरसों को माली ताउन नहीं मिल रहा है। ऊपर से सैलाब आने के बाद मदरसों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। वाज़ेह है कि रियासत में ही नहीं बल्कि मुल्क भर में और बिलखुसूस बिहार और यूपी और आसपास के इलाके, कर्नाटक, जहाँ कहीं भी है, हज़ारों ऐसे मदरसे हैं जो पूरी तरह से लोगों के चंदे पर चलते हैं। इसके अलावा मकातिब हैं और मकातिब की हालत और भी ख़राब हो चुकी है। अगर हिंदुस्तान के कई इलाक़ों की बात करें या फिर बिहार की बात करें जिसमें मगरबी चंपारण, मशरक़ी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान, गोपालगंज कहें, दरभंगा के इलाके हो या मधुबनी की, सुपौल के हो या अररिया, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज के अलावा यूपी के वो सारे इलाके जिन इलाक़ों में जो मदारिस कायम हैं, कर्नाटक के कहें, हैदराबाद, गुजरात, जहाँ कहीं भी इस वक्त मदरसे चल रहे हैं, वो तमाम मदारिस के उलमा इकराम भी परेशान हैं और उनसे वाबस्ता लोग भी परेशान हैं। जाहिर सी बात है अभी तो तालीम शुरू नहीं हुई है, तालीम अनकरीब शुरू होने वाली है, लेकिन इन 6-7 महीने के दरमियान में कई सारे मदारिस के असातिज़ा को तनख्वाह नहीं मिली। जाहिर सी बात है कि उनके पास दूसरे कोई सोर्सेस नहीं हैं, उनके घर भी चलने हैं, उनका निज़ाम भी बनाना है। ऐसे हालात में ऐसी तंजीमों को निकल कर के इन उलमा इकराम की जो मदरसे से वाबस्ता हैं उन लोगों की जो है हालत पूछना चाहिए, इसलिए कि जो है लगातार कुछ लोगों की जानिब से सीधी बात को भी फ़ोन आ रहे हैं कि जो है हर जगह इस वक्त उलमा इकराम और मदरसे से वाबस्ता वो लोग जो तनख्वाह रुकी हुई है माली बहरान की वजह से या चंदा ना होने की वजह से वो बड़े परेशान हो रहे हैं। एक तो एजुकेशन है, औलाद है, खाना पीना है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी है, दूसरे अखराजात भी हैं और ऐसे हालात में कई महीनों तक तनख्वाह ना मिलने की वजह से भी परेशान है। ऐसे में मुल्क भर में जो बड़ी तंजीमें कहलाई जाती हैं उनको चाहिए कि वो एक लिस्ट और फहरिस्त बना करके कम से कम इन लोगों के रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजरे, जो हालात हैं उसको सही कर लें। इस तरह जो है कोई निज़ाम बनाने की इस वक्त ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि तंजीमें इस जानिब अपने अपने इलाके की जो सतह पर काम कर रही हैं या आप अपनी बस्ती की, आप अपने मोहल्ले की जहाँ मदरसा कायम है वहाँ के लोग जो इन तंजीमों से रब्ता करके यहाँ पढ़ाने वाले, पढ़ने वाले मुलाजिमीन के लिए कोई रास्ते खोलेंगे। मुझे इस बात की ज़रूर उम्मीद है और मैं अपील भी करता हूँ कि इस जानिब जो है पूरी तरह संजीदगी से सोचें और उलमा इकराम का ज़रूर ख्याल करें जो आपकी नस्लों को ईमान पर ज़िंदा रखने की कोशिश करते हैं, फ़िक्रें करते हैं, आपके आखिरत की भलाई के लिए तन्हाई में उठ करके आप लोगों के लिए और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआएं करते हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। जो खबर आ रही है इस वक्त पड़ोसी मुल्क से है। पाकिस्तान के चमन शहर में पीर के रोज़ एक ज़ेर तामीर इमारत के करीब हुए बम धमाके में कम से कम 5 अफराद की मौत हो गई है जबकि 10 दीगर ज़ख्मी हो गए हैं। मकामी पुलिस ने इस बम धमाके की तस्दीक की है और बताया कि ज़ख्मियों को करीब के अस्पताल में बगर्ज़े इलाज दाखिल कर दिया गया है। धमाके से मुताल्लिक रोज़नामा एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शाये रिपोर्ट के मुताबिक चमन शहर के माल रोड इलाके में एक मोटरसाइकिल में धमाका ख़ेज़ मादा नस्ब किया गया था, जिसके धमाके से करीब में मौजूद मैकेनिक की एक दुकान में ज़बरदस्त आग लग गई। आग इतनी शदीद थी कि पूरी दुकान जल करके खाक हो गई। तो नाज़रीन,
पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो है इस तरह धमाकों की लगातार खबरें आना, यहाँ कोई भी इलाका महफूज तस्वुर ही नहीं किया जाता है ना। कुछ नहीं, कुछ दिनों के बाद जो इस तरह के वारदात सामने आते हैं, मारने वाला भी अपना है और मरने वाले भी अपने। आप जो है कसूरवार ठहराएंगे भी तो किसको ठहराएंगे। इस कौम की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि इसको ढाने वाली, इसकी सोच और इसकी फ़िक्रों को, इसकी बुलंद हौसलों को ख़त्म करने देने वाली खुद इसी के कौम में मौजूद मुनाफिकीन हैं, जो हमेशा से इस सरसब्ज़ व शादाब जो दरख्त है उसको जहरीले अपने जहर से या अपने जहरीले मवाद से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। बहरकैफ नाज़रीन, अल जज़ीरा के सहाफ़ी हुसैन की क़ैद की मुद्दत में इस वक्त फिर 45 दिन की तोसी हुई है। ये मिस्र से आ रही खबर है। मिस्र में हुकाम ने पीर को अल जज़ीरा के सहाफ़ी मोहम्मद हुसैन की क़ैद में 45 दिन की तोसी कर दी। सहाफ़ी हुसैन मिस्र के रहने वाले हैं और दिसंबर 2016 से मिस्र की क़ैद में हैं। उन पर सरकारी इदारों के खिलाफ लोगों को उकसाने और बदनज़मी फैलाने के मकसद के साथ झूठी खबरें शाये करने का इल्ज़ाम लगाया गया। मिस्र की हुकूमत किस तरह की है आपको मालूम ही है, और अल जज़ीरा चैनल कहाँ का ये भी आपको मालूम है। जो दुश्मनी कतर से मिस्र की है वो भी आप जानते हैं। जाहिर सी बात है कि ऐसे हालात में वो ऐसे चैनल के सहाफ़ी को वहाँ किस तरह से रख सकते थे जो सच बोलता है, सच लिखता है, सच पेश करने की कोशिश करता है। यही गलती सहाफ़ी हुसैन की थी जो अल जज़ीरा से जुड़े हुए थे। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ की हुकूमत को हज़म नहीं हुआ, उसको गिरफ्तार कर लिया गया और मजीद उसकी कैद में 45 दिन की तोसी कर दी। सहाफ़ी हुसैन ज़ाती दौरे पर जब दिसंबर 2016 में मिस्र आए थे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और उस वक्त के बाद से वो 1300 दिन से ज़ायद जेल में गुजार चुके हैं। मजीद दिनों को जो है यानी उन पर इस वक्त अल जज़ीरा से जुड़े होने और सच बोलने की वजह से उन पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो है इल्ज़ामात आयद करके उनको कैद में रखा गया है। ये है मिस्र की हुकूमत और वहाँ की जालिम सीसी की हुकूमत जो सच बोलने वाले सहाफ़ियों के साथ इस तरह का रवैया अपना रही है। नाज़रीन, बात करते हैं पीस पार्टी के सदर डॉक्टर अयूब की। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की पीस पार्टी के कौमी सदर डॉक्टर अयूब के खिलाफ पीर को NSA की कार्रवाई की गई है। लखनऊ के जिला अफसर अभिषेक प्रकाश ने इसकी तस्दीक की। DM ने कहा है कि डॉक्टर अयूब के खिलाफ एक कार्रवाई मजहबी जज्बात भड़काने और कानून और इंतजाम के लिए खतरा पैदा करने की वजह से की गई। अयूब को बकरीद से एक दिन पहले गोरखपुर से गिरफ्तार किया गया था। दरअसल लखनऊ में हजरतगंज पुलिस ने पीस पार्टी के सदर डॉक्टर अयूब पर मुकदमा दर्ज किया था। उन पर उर्दू के अखबारात में इश्तिहाल अंगेज बयान देने वाला पोस्टर शाया करवाने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। 153A 505 और IT एक्ट के तहत ये FIR दर्ज की गई है। लखनऊ में हजरतगंज के सब इंस्पेक्टर के सिंह ने ये मुकदमा दर्ज किया था। डॉक्टर अयूब के खिलाफ मजहबी जज्बात को मजरू करने, फिरकावाराना तशद्दुद फैलाने के इल्जाम उन पर लगाए गए हैं। गोरखपुर पुलिस को लखनऊ पुलिस ने पैगाम मिलने के बाद पुलिस ने डॉक्टर अयूब को उनकी क्लिनिक से गिरफ्तार किया था। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि पीस पार्टी के सदर डॉक्टर अयूब हमेशा सुर्खियों में छाए रहते हैं और जो है वो अलग अलग बयानात भी देते रहते हैं। बिलखुसूस कौम की खिदमत के नाम पर भी उनके बयानात इस वक्त जारी होते रहते हैं। जाहिर सी बात है कि इस वक्त यूपी में जो हुकूमत है वहाँ पर सच बोलना भी बड़ा मुश्किल है। ऐसे हालात में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है अगर आप कोई चीज़ शाये करते हैं अखबारात में तो उसको यहाँ की पुलिस को कैसे हज़म होगा, यहाँ की हुकूमत को कैसे हज़म होगा। बहरकैफ नाज़रीन, एक आखिरी खबर आप लोगों से रख कर के मैं इजाज़त लूँ। ताइवान की वजारत दिफा का कहना है कि पीर की सुबह चीनी लड़ाका तैयारों ने मुख्तसर वक्त के लिए दोनों मुल्कों के दरमियान हसास समंदरी पट्टी पार की, जिस पर मुल्की फ़िज़ाइया ने उन्हें वापस जाने पर मजबूर कर दिया है। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ताइवान और चीन के दरमियान में हमेशा कुछ खलीज और कुछ दूरियां पाई जाती हैं। ताइवान ने इस दौरान तैयारा शिकन मिसाइल भी दागे। दूसरी जानिब हुकूमत ने कहा है कि अमरीकी वज़ीर सेहत एलेक्स अज़रर ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हिमायत के इजहार के लिए इतवार को चीन का एक रोज़ा दौरा भी किया था। खबरसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक किसी आला तरीन अमरीकी अहदेदार का गुज़श्ता 40 बरस में ताइवान का पहला दौरा है जिसकी चीन ने मजम्मत की। उसका दावा है कि ताइवान उसकी मिल्कियत है और अमरीकी वज़ीर के दौरे से दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद ख़राब होंगे। बहरकैफ नाज़रीन, ये बात वाज़ेह है कि जो है जब अमरीका किसी मुल्क के ख़िलाफ़ हो जाता है तो उसके जो हरीफ ममालिक होते हैं उनको सपोर्ट करने के नाम पर वरगलाने की कोशिश करता है। ये हमेशा से अमरीका का रवैया रहा है, उसकी साजिश और उसका जो है मंसूबा रहा है। जाहिर सी बात है कि ताइवान चीन के दरमियान में जो है लगातार दूरियां बढ़ती हैं, लेकिन कुछ माहिदों के तहत जो है यहाँ पे किसी तरह की खलीज और दूरियां पैदा नहीं होती। अब जबकि चीन और अमेरिका के दरमियान दूरी पैदा हो रही है तो ऐसे हालात में जो है अमेरिका ताइवान का करीब होकर के चीन के खिलाफ लगाने की कोशिश कर रहा है। इस तरह के तबसरे हैं। बहरकैफ ये सारी चीज़ें ऐसे हैं जो सियासत से वाबस्तगी रखने वाले लोगों को समझना बहुत आसान हो जाता है।
मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है, इसी रह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है, तुम्हीं हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है, मुमताज पाया है, तुम्हीं से है तरक्की पर अजीज अंसार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात।